Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So today we are going to discuss the second lecture in AS Physics physical quantity topic, and the topics that we are going to cover today are measurement techniques, and in which we are going to discuss the name of the instruments that are used to calculate different quantities. Secondly, we are going to cover about prefixes, which means the terms or the decimal multiples or submultiples that are used to describe very large or very small amount of the quantity. Then we are going to discuss about the difference between accuracy and precision and the factors affecting them. And finally, we are going to cover systematic and random errors and types of systematic errors in today's video. First of all, if I talk about measurement techniques, we have multiple quantities in syllabus and there are multiple instruments that are used to calculate the magnitude of each quantity. For example, if I discuss about length, so length can be measured with trundle wheel, which is not in our syllabus in AS physics, but in O-level physics it's in our syllabus. Secondly, we are going to discuss about meter rule. Other name of the instrument is meter rule. The third name is measuring tape. Fourth instrument is micrometer screw gauge. And fifth name is vernier caliper. अब हम इनकी पर्पस को डिस्कस करें. Meter rule is used to calculate quantities that are within the range of 100 centimeters because it stands for meter rule, which means 1 meter and 1 meter is equals to 100 centimeters. If we discuss about measuring tape, so measuring tape is used to calculate quantities that are even greater than 100 centimeters, which means it can be used to calculate both quantities length lesser than 100 centimeters or greater than 100 centimeters. The third is micrometer and vernier caliper. Micrometer and vernier caliper are used to calculate very small lengths, for example, diameter of a sphere or diameter of a wire. The second quantity is mass. The most accurate device to calculate mass is electronic balance, or you can say top pen balance. अगर हम एक सिलेबस की बाहर की चीज डिस्कस करें, that why we are using top pen balance and why it is the most accurate device. First of all, it is a digital device and digital devices give values more accurate than manual devices. Secondly, it is easier to use. Every person can easily use it. But its disadvantages are it depends on an external power source, which means if cells are over, we have to replace the cells or battery, and its repairment is difficult. इसको repair करना difficult है, हर किसी के बस की बात नहीं है. Second is two pen balance. Just wait a second, I'll be right. Okay, sorry for the disturbance. Let's continue. टू पेन बैलेंस को हम उर्दू में कहते हैं तराजू. तराजू ज्यादातर आपको फ्रूट वेंडर्स और वेजिटेबल्स वेंडर्स के पास मिलेगा एंड इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू मासेस. ये एक मास को मेजर नहीं कर सकता. इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू मासेस. इट कंपेयर्स टू मासेस. अगर हम टाइम की बात करें,
time is measured, can be measured using three main devices. First of all, digital stopwatch. You can also write analog stopwatch. ज्यादातर इनके क्वेश्चंस आते नहीं है सिलेबस में, एक्सटर्नली मेंशन नहीं है कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन सी लेंथ को लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन डिजिटल स्टॉपवॉच इज अगेन डिजिटल डिवाइसेस आर मोर एक्यूरेट देन एनालॉग डिवाइसेस. सेकंड इज CRO, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. बट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जो डिटेल स्टडी है वो चैप्टर 1 से वेव्स के चैप्टर में मूव हुई है, जिसमें हम वेव्स को ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं CRO पे. एंड थर्ड वन इज लाइट गेट. अब ये ना मैं आपके लिए नया होगा. लाइट गेट हमने यूजुअली यूज नहीं करते. लाइट गेट उन ऑब्जेक्ट्स की टाइम को एक्यूरेटली नोटिस करता है जिनको हम फ्री फॉल करवाते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू द बॉटम और मैं एक्यूरेटली चाहता हूँ कि इसका टाइम मैं नोटिस कर सकूं, मैं जितनी रिपीटेशन कर लूं मैं डिजिटल स्टॉपवॉच से मेजर नहीं कर सकता. या तो मैं कभी जल्दी स्टॉपवॉच ऑफ कर दूंगा या तो कभी देर से करूंगा ड्यू टू रिएक्शन टाइम एरर. इसलिए हम लाइट गेट यूज करते हैं. इसकी डिटेल में नहीं आ रहा है क्योंकि अगेन सिलेबस में नाम नहीं लिखे हुए इनके कि आपने कौन सा करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सी लेंथ मेजर करनी है. आप देख सकते हैं इसको कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे. नंबर 4 पर अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 पे हमारे पास है वेट. वेट को हम डायनामिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं, ओ लेवल्स में पढ़ते हैं. वेट को हम मेजर कर सकते हैं न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस से. न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस से. इसको स्प्रिंग बैलेंस क्यों कह रहे हैं? इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है और जैसे ही हम कोई और नीचे की तरफ एक हुक लगा होता है, जैसे ही हम कोई वेट हैंग करते हैं इससे तो स्प्रिंग जो होता है डिस्प्लेस होता है अपनी मीन पोजीशन से, और जिस रीडिंग पे वो आए क्योंकि कैलिब्रेटेड होता है न्यूटन्स में, वो हमारी उसकी रीडिंग होती है, वेट की रीडिंग होती है, मैग्नीट्यूड होता है. इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम एमीटर से मेजर कर सकते हैं जो कि मेजर करंट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, जो कि एम्पियर्स में होता है हमारे पास. सेकेंडली हम गैल्वानोमीटर यूज कर सकते हैं. गैल्वानोमीटर हमें माइनर करंट्स बताता है जो कि मिली एम्पियर्स में, और हमें करंट सेंस करने में मदद करता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेंस द करंट कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल. नंबर 3, मल्टीमीटर. As the name suggests, the word multi means multitasking. It can be used to measure current, it can be used to measure voltage, and it can be used to measure resistance as well. It measures all electrical quantities. And lastly, volume of liquid. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर, और नंबर 2 बीकर. Just for the sake of knowledge, I am telling you that there are 2 types of measuring cylinder that are used in physics lab. First one is made of plastic and the second one is made of glass. The measuring cylinder made of plastic is recommended for 2 purposes. First of all, it is non-fragile. Plastic आसानी से टूटेगा नहीं. Secondly, its meniscus is straight. ग्लास के मेजरिंग सिलेंडर में कर्व मेनिस्कस होता है जिससे पैरेलैक्स एरर आ सकता है. इसका मेनिस्कस स्ट्रेट होता है प्लास्टिक मेजरिंग सिलेंडर का. ओके,
अब इसके बाद हमें प्रीफिक्सेस की बात करनी है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? हमने इंग्लिश तो पढ़ी है सबने ओ लेवल्स की। प्रीफिक्स का मतलब होता है वो वर्ड जो किसी वर्ड के पीछे लगे और एक नई आइडेंटिटी दे दे उसको। हम जब ऐसा ही यूनिट्स के पीछे कोई प्रीफिक्स लगाते तो वो क्वांटिटी डिविएट कर जाती है, या तो वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ये प्रीफिक्स, या तो बहुत लेस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, so now let's discuss prefix name, its exponential value, and number 3, some rules that are used to convert between prefixes. First of all, we have Terra, represented with the symbol capital T. It is 10 power 12. अभी आपको जीरो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल वैल्यू में, क्योंकि बहुत लार्ज वैल्यू बनेगी। आप सिर्फ एक्सपोनेंट याद करने की जरूरत है आपको। सेकंड इज गीगा, represented with the symbol capital G. Its value is 10 power 9. Third one is mega, represented with the symbol capital M. Its value is 10 power 6. Then we have kilo, represented with the symbol small k. Its exponential value is 10 power 3. Then we have deci, represented with symbol small d. Its value is 10 power minus 1. Then we have centi, represented with the symbol small c. Its exponential value is 10 power minus 2. Then we have milli, represented with the symbol small m. Its exponential value is 10 power minus 3. अब मैं थोड़ा सा उधर लिखता हूँ। Again prefix, or its exponential value. Then we have at the number 8 micro. अच्छा, माइक्रो को हम सिंबल कैपिटल एम या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट नहीं करते। माइक्रो के लिए सिंबल यूज होता है स्पेशल, दैट इज म्यू. इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल म्यू. इट्स वैल्यू इज 10 power minus 6. Then we have nano, represented with the symbol small n. Its value is 10 power minus 9. And then we have at last pico, represented with symbol small p. Its value is 10 power minus 12. हमारे सिलेबस में बस यही करें। ओके, अब हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें किसी वैल्यू में कोई भी ऐसा कोई भी प्रीफिक्स इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमें सेकंड से माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, यानी सेकंड से माइक्रो इंसर्ट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे वैल्यू से जो सेकंड्स की वैल्यू है। इन ऑर्डर टू insert a prefix, divide the value by the exponent of that prefix.
अगर हमें किसी भी वैल्यू में प्रीफिक्स को इंसर्ट करना है तो हम जो एक्सपोनेंट है, वैल्यू है, उसको एक्सपोनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में आना है, मुझे किलो को इंसर्ट करना है मीटर में, तो 10 की पावर 3000 से डिवाइड करूंगा। यही हमने सीखा कि इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी वी हैव टू डिवाइड। लेकिन आप उस रूल को नहीं करें क्योंकि अक्सर औकात वो रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमें कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। तो इसलिए ये रूल ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रूल है। सेकेंडली, अगर हमें किसी वैल्यू में से प्रीफिक्स को रिमूव करना है, हटाना है, फॉर एग्जांपल माइक्रो सेकंड से सेकंड्स में आना है, माइक्रो हटाना है, तो देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय द एक्सपोनेंट ऑफ दैट प्रीफिक्स in order to remove a prefix. We have to multiply the value by the exponent of that prefix. In order to remove a prefix, we have to multiply value by the exponent of that prefix. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए ये अभी रख देते हैं, यहाँ से करते हैं एग्जांपल्स। जस्ट वेट अ सेकंड, आई सी बोर्ड इज विजिबल। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे, लेट मी सी फ्रॉम माय नोटबुक, अभी कैलकुलेटर का इशू है। 9500 न्यू सेकंड से जाना है मुझे सेकंड्स में, तो मैं क्या करूंगा, मैंने रिमूव करना है प्रीफिक्स, न्यू को हटाना है सेकंड्स में से, तो देयरफॉर 9500 by the exponential value of micro, that is 10 power minus 6, and your answer is 0.095 seconds. Secondly, if we want to convert from 1.85 exponent minus 3 megajoules to joules, mega को remove करना है, तो therefore we will multiply by the exponent of mega, that is 10 power minus 10 power 9. Thirdly, let's focus on now rule number, और इसी तरह आप convert कर सकते हैं। अब फोकस करते हैं रूल नंबर 2 के वैल्यूज, रूल नंबर 2 की एग्जांपल्स पे। लेट्स से वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम 1.85 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम्स टू किलोग्राम्स। इंसर्ट करना है, डिवाइड करूंगा बाय 1000 या 10 की पावर 3, 1000 नहीं लिख रहा मैं। और यही तो हमने किया था, यही तो हम जूनियर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो योर आंसर बिकम्स 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 7। और इसी तरह आप सारी एग्जांपल्स कर सकते हैं। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स हमें एग्जाम में दिखाने होगा, और बाकी हम डिवीजन कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप हमें दिखाना होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है जब हमें ऐसा यूनिट से प्रीफिक्स में नहीं आना,
या प्रीफिक्स ऐसा यूनिट में नहीं आता, अभी तक हमने माइक्रो सेकंड्स को सेकंड्स में, मेगा जूल्स और जूल्स में, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया, यानी प्रीफिक्स से ऐसा यूनिट या ऐसा यूनिट से प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया. नाउ लेट कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट प्रीफिक्सेस. क्वेश्चन टाइप 2, converting from one prefix to another. अब यहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल आई नीड टू कन्वर्ट 1.98 exponent -4 मेगावाट, सॉरी किलोवाट, 2 मेगावाट. अब हमने तो इस तरह मिलीवाट. अब हमने तो इस तरह का एक्सपोनेंट याद ही नहीं किया एक किलोवाट में कितने मेगावाट आते हैं, तो हमें पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. अगर मैं इसका रोड मैप बनाऊं तो देयरफॉर कन्वर्ट किलोवाट टू वॉट एंड देन फ्रॉम वॉट टू मिलीवाट, ऐसा यूनिट को हमने इन्वॉल्व करना है. देयरफॉर 1.98 एक्सपोनेंट -4, सबसे पहले तो मुझे किलो को रिमूव करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है बाय एक्सपोनेंट ऑफ किलो, दैट इज 10 की पावर -3, सॉरी 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय वॉट से मेगावाट में आना है, वॉट से मेगावाट में आना है. देयरफॉर आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इंसर्ट करना है. देयरफॉर आई नीड टू डिवाइडेड बाय 10 पावर -3, और जो भी आंसर आपका आएगा यू कैन पुट इन कैलकुलेटर एंड डू, वो आपका किलोवाट को मिलीवाट में कन्वर्ट कर देगा. लेट्स डू सेकंड एग्जांपल. The second example is 2.6 exponent 5 mu joules, you can also say mu or you can also say micro, to kilojoules. Again we have to move from mu joules to joules and then joules to kilojoules. तो mu joule से joules में जाने के लिए रिमूव करना है मैंने प्रीफिक्स, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस एंटायर वैल्यू को बाय 10 पावर -6, दैट इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ माइक्रो, एंड देन मैं डिवाइड करूंगा जूल से किलो जूल्स में जाने के लिए इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि अब माइक्रो जूल से जूल्स में कन्वर्ट हो गई है, तो इस पूरी वैल्यू को, ना कि एक सिंगल वैल्यू को, मैं जूल से किलो जूल्स में जाने के लिए डिवाइड करूंगा 10 पावर 3 में, एंड योर आंसर विल बी इन kilojoules. अब लेट्स से हमारे पास एक और क्वेश्चन की टाइप क्या आती है. जब हमारे पास क्वांटिटी पे स्क्वायर या क्यूब लगा हो. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन टाइप 3, when there is a square or cube on quantity, for example examiner is asking us to convert from 4400 cm square to किलोमीटर स्क्वायर. अगेन तरीका वही है रोड मैप का, कि cm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आएंगे, और मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में आएंगे. लेकिन स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 2 दफा लिखी हुई है, यानी सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, और किलोमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर. फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, 2/2. तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल
हम सेंटी को हटाने के लिए सेंटी के उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को तो कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू नहीं है, सेंटी की एक्सपोनेंट सॉरी मतलब 10 की पावर मतलब 100 है, उसको आप एक्सपोनेंट में करके देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको 10 की पावर सेंटी हटाना है -2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड किससे करूंगा, किलो का स्क्वायर है, किलोमीटर का स्क्वायर है, यानी किलो इंसर्ट करना है मैंने, तो देयरफॉर आई विल डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 का स्क्वायर, क्योंकि वो क्वांटिटी 2 दफा आ रही है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एंड योर आंसर विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से मुझे कन्वर्ट करना है 9.8 एक्सपोनेंट -8 मिलीमीटर क्यूब से माइक्रोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देयरफॉर अगेन द रूल इज सेम, मिली हटाना है यानी मल्टीप्लाई करना है मैंने 10 की पावर, मिली का एक्सपोनेंट होता है, लेट मी सी व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ मिली, मिली का एक्सपोनेंट होता है 10 की पावर -3, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी क्यूब के साथ है मैं यहाँ भी क्यूब लगा दूंगा क्योंकि 3 दफा यह क्वांटिटी आ रही है, और माइक्रो इंसर्ट करने के लिए डिवाइड में करूंगा माइक्रो का एक्सपोनेंट 10 की पावर -6 से क्यूब से, तो देयरफॉर 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8 होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 पावर -6 क्यूब, and your answer will be in micrometer cube. अब हमारे पास आ रही है कि डबल यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो हमने सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया, ऑल्दो यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स इन्वॉल्व है, लेकिन हमें एक क्वांटिटी के साथ दूसरा क्वांटिटी नहीं लगी हुई है, यानी ग्राम्स पर सीएम क्यूब नहीं लगा हुआ है, किलोमीटर पर आवर्स नहीं लगा हुआ है, किलोमीटर लगा हुआ है सिंगल, ग्राम्स लगा हुआ है। तो देयरफॉर लास्ट क्वेश्चन टाइप इज question type 4, converting double units और आप कहना फ्रैक्शनल यूनिट्स, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हुए हैं। लेट्स से आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम grams per cm cube to, okay sorry, let's do an example. I have to convert from 13.6 grams per cm cube to kilograms per cm kilograms per meter cube। यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, किलो ग्राम से किलो और सेंटीमीटर से मीटर, उसमें तो सिंगल क्वांटिटी थी। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर क्वांटिटी इन फ्रैक्शन ताकि हमारे लिए सिंपलिसिटी हो जाए, एंड केजी पर मीटर क्यूब। अब ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो इंसर्ट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 10 पावर 3 से, और सेंटीमीटर में से सेंटी हटाना है यानी मल्टीप्लाई करेंगे सेंटी के एक्सपोनेंशियल वैल्यू से, दैट इज 10 पावर -2। राइट, मैंने ग्राम से किलोग्राम में जाना है, किलो को रिमूव करना है, किलो को सॉरी ऐड करना है, तो डिवाइड करूंगा, जो रूल हमारा कहता है 10 पावर 3 से एक्सपोनेंट ऑफ किलो, और सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, यानी सेंटी से मीटर में जाना है, सेंटी से मीटर में जाना है, और उस पे क्यूब लगा हुआ है यानी होल क्यूब। लेकिन मसला ये कि जब मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और कोई और वैल्यू नहीं होगी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो मेरा आ जाएगा मैथ एरर कैलकुलेटर में। तो देयरफॉर आई विल डू दिस 13.6 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 का क्यूब। फिर से सुने, मैंने सेंटीमीटर ये वाला तो हमें क्लियर है कि ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए किलो इंसर्ट करना है, डिवाइड कर दिया किलो के एक्सपोनेंट से। सेंटीमीटर से मीटर में आना है, सेंटी को इंसर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दिया उसके एक्सपोनेंट से, दैट इज -2। लेकिन क्यूब लगा हुआ है, यानी ये क्वांटिटी 3 दफा है, तो इस पे भी मैंने क्यूब लगा दिया। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर मल्टीप्लाई के पीछे कोई वैल्यू नहीं होगी, मेरे आ जाएगा मैथ एरर कैलकुलेटर में। इट इज नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल, therefore I am inserting 1 because if there is nothing in denominator it's always 1। 2/1 क्या होता है? 2 होता है। 3/1 क्या होता है? 3 होता है। बेसिक रूल है तो मैथ्स का। तो हमारा जो भी आंसर अब आएगा वो होगा 13.6 ग्राम्स पर cm क्यूब टू kg पर मीटर क्यूब। इसका कन्वर्जन फैक्टर भी देख लेते हैं। क्या रहना है हमें? 1 ग्राम पर cm क्यूब, ग्राम्स पर cm क्यूब से 1 ग्राम पर cm क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन कन्वर्जन फैक्टर अगर याद ना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, तो हम लॉजिकली समझ लेंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर रटने वाली चीज है, और रट्टा जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। अब लेट्स एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड से मैंने जाना है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो मैंने मीटर पर सेकंड को फ्रैक्शन में लिखा, किलोमीटर पर आवर को फ्रैक्शन में लिखा। मीटर से किलोमीटर में आना है, यानी किलो को इंसर्ट करना है, देयरफॉर आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय एक्सपोनेंट ऑफ किलो, दैट इज 10 पावर 3। मुझे सेकंड से आवर्स में आना है, सेकंड से आवर्स में आना है। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होता है, और स्मॉल से बिग क्वांटिटी में आना है, तो कन्वर्जन फैक्टर इतना तो हमें याद रखना चाहिए। तो 3600 से मैं डिवाइड करूंगा, 3600 से डिवाइड करूंगा। Therefore 20 into 20 divided by 10 power 3 whole divided by 3600। अच्छा, मैं एक बार कैलकुलेटर में भी कर देता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक होगी, इसमें आंसर 72 ही आना चाहिए। लेट मी ब्रिंग माय कैलकुलेटर। ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 whole divided by 3600। ओके, इसमें भी एक सेक्शन है, मैं अगली वीडियो में आपको लॉजिक भी बता दूंगा इसमें भी हम 1 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, ताकि आंसर हमारा सही है एज पर कन्वर्जन फैक्टर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
एक समरी ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अगर एसआई यूनिट से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो किसी भी, यानी प्रीफिक्स को इंसर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू है उसको प्रीफिक्स से एक्सपोनेंट से अगर रिमूव करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को एक्सपोनेंट के प्रीफिक्स से। अब अगर दो प्रीफिक्सेस के बीच में कन्वर्ट करना हो, बीच में कोई यानी प्रीफिक्स से एसआई यूनिट में कन्वर्ट ना करना हो, तो हम प्रीफिक्स से पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हमारा रोड मैप है, और फिर कन्वर्ट करेंगे दूसरे प्रीफिक्स में, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड साइमल्टेनियसली करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम 1 इंसर्ट करेंगे, ओके। और डिनोमिनेटर में भी मेरे ख्याल में 1 इंसर्ट करना पड़ता है, एक रूल है स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट कि हमें 1 इंसर्ट करना पड़ेगा और डिवाइड कर दीजिए, सही आंसर उसी से आ रहा है, ओके। अब तीसरा क्वेश्चन टाइप डबल यूनिट जर्नल, यानी एक यूनिट में कन्वर्ट ना करना, सेकंड से माइक्रो सेकंड, मेगा जूल्स टू जूल्स, किलोवाट टू मेगावाट, दो अलग अलग क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी ग्राम्स पर सीएम क्यूब टू किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, यानी दो, तो हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे जो हमने एक्सपोनेंट में रूल सीखे हैं। नाउ मूव ऑन टू एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, दैट इज आवर सेकंड लास्ट टॉपिक। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं एक्यूरेसी और प्रेसिजन को, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है और लोग इनको एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज कर रहे होते हैं आमतौर पर। एक्यूरेसी मींस दैट हाउ क्लोज योर वैल्यू which you obtain through your equation, your calculation or your experiment is to the true or known value. For example, if I am doing an experiment to find the value of gravitational field strength and its value is 9.8 and my answer comes out to be 9.7, my answer is accurate. If my answer comes out to be 9.79, my answer is accurate. But if it comes greater than 9.8, except from the fact that 10 is rounded off in 9.8 is rounded off to 10 in several cases, if my answer comes to be greater than 10 or lesser than 9, 8, 7, 6, 5, तो therefore my answer is inaccurate. अब प्रेसिजन का क्या मतलब है? प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि हम एक सेट ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि वो वैल्यूज आपस में कितनी करीब है, यानी रिजल्ट्स कितना कोइंसाइड कर रहा है, हमारा एक्सपेरिमेंट कितना क्लोज जा रहा है। एक्यूरेसी refers to how close, refers to the closeness of measured value to the true or known value, whereas precision refers to how close a set of values, यानी multiple values are to each other. Accuracy में क्या है? Closeness of measured value, एक value to the true or known value, क्योंकि accurate एक value होती है, precise multiple values होती हैं. Precision refers to how close a set of values, multiple values are to each other. For example, in a calculation, the accurate answer is 4.5. Multiple students are performing. एक का आंसर आ रहा है 4.1, एक का 4.2, एक का 4.3, एक का 4.4, एक का 4.5. इसका मतलब वो प्रेसाइज है। अब प्रेसिजन मैटर करती है कि एक्सपेरिमेंट में ये दिखाने के लिए कि सब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को करेक्टली परफॉर्म करें, तभी उनकी वैल्यूज में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह का आ रहा होगा या कोई रिएक्शन टाइम एरर का आ रहा होगा। अगर अब हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी, the first factor is equipment's use. For
For example, if you are using incorrect instruments to measure a certain value in a certain experiment, your answers will be wrong. Equipments used. Number 2, method involved, जिसमें हमारी इक्वेशंस आ गई, हमारी फॉर्मूलाज आ गए, हमारे लॉज आ गए जिनकी बेस पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर एक मैं एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं पाई आर स्क्वायर, तो मैं कितना भी रिपीट कर लूं मेरा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहा हूं, मेरा मेथड ही गलत है. भले ही मेरे इक्विपमेंट्स भी सही हो, क्या मैं रूलर यूज कर रहा हूं मेजर करने के लिए लेंथ रेडियस की, सॉरी रेडियस की नहीं, एक लेंथ, लेकिन फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहा हूं. थर्ड है skills of experimenter. This means the person who is performing the experiment is well capable that how to run an experiment. वो कोई गलती नहीं कर रहा, पता चले इंस्ट्रूमेंट्स भी सही हो, मेथड भी सही हो, मैं कोई रिएक्शन टाइम एरर की वजह से मिस्टेक कर रहा हूँ, रैंडम एरर्स कर रहा हूँ, मैं गलतियां कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करते हुए, सिस्टमैटिक गलतियां कर रहा हूँ, मैं एक ही तरीके से बार बार गलतियां कर रहा हूँ, तो मेरे स्किल्स का मसला है, मेथड या इक्विपमेंट का मसला नहीं है, मेरा मसला है, मेरी गलती है. अगर अब हम बात करें कि जो फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करते, ये सारी चीजें आती हैं सिस्टमैटिक एरर में, या स्पेशली ये दो चीजें आती हैं सिस्टमैटिक एरर में. आगे हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और कैसे इफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी को. Therefore, by reducing, how to improve accuracy. Now our method is our concern is how to improve accuracy. Accuracy को बढ़ाते कैसे हैं? First of all, reduce systematic errors. क्योंकि ये इनमें से दो तो सिस्टम की गलतियां हैं, इक्विपमेंट गलत यूज हो रहा है, सिस्टम है वो हमारा, मेथड गलत यूज हो रहा है, सिस्टम है वो एक ही तरह से डिविएट कर रहा है वैल्यू को. सिस्टमैटिक एरर में हम पढ़ेंगे होता क्या है. तो यूज सिस्टमैटिक एरर. एक और फैक्टर होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का जब वीडियो बनाऊंगा तभी बताऊंगा. रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस करने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. एक चीज है फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग सिस्टमैटिक एरर. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ वैल्यू डज नॉट अफेक्ट एक्यूरेसी. फॉर एग्जांपल 9.8, क्योंकि मैं एक वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, दो वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा कि उनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है डेसिमल प्लेसेस आने की वजह से, एक वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ ट्रू वैल्यू से. Therefore, if my answer comes out to be 9.799 and the correct answer is 9.8, my answer is very accurate. So decimal places does not affect accuracy. अब हम बात करें प्रेसिजन की, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेसिजन. नंबर 1, रेंज ऑफ वैल्यूज. प्रेसिजन डिपेंड करती है आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज पे. रेंज कैसी है, अगर वैल्यूज ज्यादा स्प्रेड है, रेंज ऑफ वैल्यूज बड़ी है, प्रेसिजन कम है. अगर वैल्यूज लेस स्प्रेड है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कम आ रहा है, therefore range of values is lesser. So the lesser the range, the more precise the values are. और ये चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि इनसे भी आपकी रेंज खराब आ सकती है. फॉर एग्जांपल, मेरे रिएक्शन टाइम का मसला है, मैं और मेरा फ्रेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है, मेरा कम है, तो मैं स्टॉपवॉच अनटाइमली यूज कर रहा हूँ, यानी करेक्ट टाइम पे यूज नहीं कर रहा, तो मेरी वैल्यूज कुछ और आएंगी, उसकी वैल्यूज कुछ और आएंगी, हमारी प्रेसिजन खराब होगी. मेथड इन्वॉल्व, अगर हम मेथड ही गलत ले रहे हैं, उसकी वैल्यू एक्यूरेसी की करीब आ रही है, मेरी एक्यूरेसी से दूर आ रही है, हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, हमारी रेंज में फर्क पड़ रहा है. इसी तरह इक्विपमेंट यूज, लेकिन सबसे मेजर फैक्टर यही है रेंज ऑफ वैल्यूज. और रेंज ऑफ वैल्यूज का इसका मतलब योर वैल्यूज आर प्रिसाइज. अच्छा, प्रेसिजन is affected by
precision can be reduced by random errors. यानी अगर वैल्यूज में मल्टीपल, एक टीचर एक्सपेरिमेंट करवा रहा है और स्टूडेंट की वैल्यूज में प्रेसिजन ही नहीं आ रही, किसी का आंसर है 5, किसी का 4, किसी का 3, इसका मतलब रैंडम एरर्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स स्टॉपवॉच टाइम पे यूज नहीं कर रहे हैं, वो मेथड गलत अप्रोच कर रहे हैं, यानी रैंडमली वो अपनी मिस्टेक कर रहे हैं जिससे प्रेसिजन इफेक्ट हो रही है। तो रैंडम एरर्स और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करके प्रेसिजन को इंप्रूव किया जा सकता है। एंड प्रेसिजन is affected by number of decimal places, यानी अगर एक वैल्यू आ रही है 4.5, एक आ रही है 4.43, डेसिमल प्लेसेस में फर्क है, वैल्यूज आर इनएक्यूरेट, वो इम्प्रेसाइज। लेट्स से एक आ रही है 9.8, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की एग्जांपल लेते हैं, एक आ रही है 9.71, दो डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस, इम्प्रेसाइज, इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है, रेंज ज्यादा है। डेसिमल प्लेसेस से वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, तो देयरफॉर रेंज इफेक्ट होती है जिससे प्रेसिजन इफेक्ट पूरा ही है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ अगर प्लॉट किया है एक्यूरेसी और प्रेसिजन का तो वो कैसे इफेक्ट होगा, कैसा दिखेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। लेट्स से हमारी ये वाई एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ रीडिंग्स, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं रीडिंग जो हमारी ट्रू वैल्यू है। लेट्स से मैं उसको नाम दे रहा हूँ ए नॉट, एक्स नॉट सॉरी। अब अगर मेरी वैल्यूज क्लोज है तो ग्राफ क्लोज बनेगा, और अगर मेरी वैल्यू अराउंड द एक्सेप्टेड वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मेरी रीडिंग्स भी एक्यूरेट हैं। तो therefore if your values are accurate and precise, your graph will look like this. Let me see if the board is visible. Okay, yes. Again, here is number of readings, और here is true reading x नॉट। अगर मेरी वैल्यू एक्यूरेट है लेकिन इम्प्रेसाइज, इसका मतलब मेरा ग्राफ की रेंज बढ़ जाएगी, स्प्रेड बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, लेकिन वैल्यूज अराउंड द एक्सेप्टेड वैल्यू आएंगी, इसका मतलब ग्राफ को यूं लिखेगा, एवरेजेस के बीच में आ रहे हैं। Again, here is my number of readings, here is my accepted reading x naught. अगर मेरा ग्राफ प्रेसाइज है लेकिन इनएक्यूरेट है, यानी ग्राफ करीब तो आएगा लेकिन एवरेज वैल्यू के अराउंड वैल्यू नहीं आएंगी, यूं आएंगी। प्रेसाइज यानी वैल्यूज करीब करीब, डिस्ट्रीब्यूशन कम है, बट इनएक्यूरेट। And if values are both imprecise and inaccurate, तो वैल्यू यूं आएगी, यानी दूर दूर है पर इम्प्रेसाइज है, इम्प्रेसाइज एंड इनएक्यूरेट।
in the last part of the video, let's discuss the difference between systematic error and random error, the types of systematic errors, and how to resolve them. Error. If we define error, mostly इसकी definition आती है नहीं है, लेकिन हमें conceptually पता होना चाहिए. It is the deviation between obtained value and true value. यानी फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आनी चाहिए थी 9.8, मेरी आ रही है 11, यानी मैंने कोई एरर किया, डिफरेंस ज्यादा है. डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर. And the second one is random error. सिस्टमैटिक एरर होता किस वजह से? सिस्टमैटिक एरर होता इस वजह से है कि आपके सिस्टम में खराबी है, यानी आपके इक्विपमेंट में मसला है या आपके मेथड में मसला है. Therefore, it results in all values being, or the value being either overstated or understated than the true value. यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका एरर आ रहा है, यानी या तो वैल्यूज बढ़ जा रही है, वैल्यू बढ़ी भी आ रही है, या तो कम आ रही है. रैंडम नहीं है कि या तो कम होगी या तो बढ़ेगी, एक हो रहा है, एक मसला आ रहा है. यानी the difference in the values is by a constant amount and in same direction. यानी बार बार मैं गलत इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो आंसर तो एक ही तरीके से गलत आ रहा है. कांस्टेंट अमाउंट और सेम डायरेक्शन, या तो बड़ा आ रहा है या तो कम आ रहा है. इसका बिल्कुल बरक्स है रैंडम एरर, यानी इट रिजल्ट्स इन वैल्यूज बीइंग scattered around the accepted value. हमने मैथ्स में वो लेवल्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है. रैंडम का क्या मतलब होता है? रैंडम का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम प्रेडिक्ट ना कर सकें वो रैंडम चीज होती है. स्कैटर्ड अराउंड द एक्सेप्टेड वैल्यू का मतलब है यानी वैल्यू या तो कम आ रही है या तो बढ़ी जा रही है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे एक्सेप्टेड वैल्यू के अराउंड. यानी इट रिजल्ट्स इन वैल्यूज बीइंग either overstated or understated than the accepted value. अब सिस्टमैटिक एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, यानी हम मेथड से अप्रोच करें, इक्विपमेंट से यूज करें, तो हमारा जो सिस्टम की वजह से एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा. देयरफॉर इट कैन, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Systematic error can be improved, can be reduced by experimental techniques only. यानी जब तक मैं अपना टेक्निक से ही सही यूज नहीं करूंगा, मेथड या इक्विपमेंट,
मैं सिस्टमैटिक एरर को कम नहीं कर सकता, सिस्टम की वजह से फॉल्ट आ रहा है। रैंडम मोस्टली ह्यूमन स्किल्स की वजह से आते हैं, इसको हम रिपीटिंग एंड एवरेजिंग से सही नहीं कर सकते। यानी मैं मेथड ही गलत यूज कर रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट में, मैं फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहा हूँ। अगेन रेक्टेंगल वाली एग्जांपल देते हैं, रेक्टेंगल में पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एरिया कैलकुलेट करने के लिए। मैं जितना रिपीट कर लूँ, जितना वैल्यूज का एवरेज करूँ, मेरी वैल्यू जिंदगी भर सही नहीं आएगी, क्योंकि मैं मेथड ही गलत यूज कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही मेरी गलत है। लेकिन रैंडम एरर में कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिपीटिंग एंड एवरेजिंग। यानी अगर मैं अपनी गलती को सुधार लूँ रिपीट करके और एवरेज लेके, और एक्यूरेट कर लूँ एवरेज लेके मल्टीपल वैल्यूज को, देयरफॉर मैं रैंडम एरर को कम कर सकता हूँ। अब सिस्टमैटिक एरर किसको अफेक्ट करता है? सिस्टमैटिक एरर आपकी एक्यूरेसी को टारगेट करते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर वैल्यू को या तो बढ़ा दे रहा है या तो कम कर दे रहा है, दोनों नहीं कर रहा, इससे एक्यूरेसी इफेक्ट हो रही है। रैंडम एरर से प्रेसिजन इफेक्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज को स्कैटर कर दे रहा है, दूर कर दे रहा है, रेंज बढ़ा दे रहा है हमारी वैल्यूज की, देयरफॉर उससे प्रेसिजन इफेक्ट हो रही है। अब यहीं तक कंक्लूड करते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई होगी। अगली वीडियो में हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ का अगर हम सिस्टमैटिक एरर के ग्राफ को और न्यूट्रल ग्राफ को देखें तो क्या फर्क आएगा, और उसके अलावा रैंडम एरर्स की एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल्स के अलावा रैंडम एरर्स और सिस्टमैटिक एरर्स की एग्जांपल्स और उनको सुधार कैसे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।